হৈছে এনে এখন ঠাই য'ত এজন প্ৰকৃত চৰিত্ৰবান ব্যক্তিৰ জন্ম হয়। ভৱিষ্যতে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে এখন সুন্দৰ সমাজ তথা ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় আৰু ভাৰত মাতাৰ সুযোগ্য সন্তান হিচাপে পৰিণত হ'বলৈ সক্ষম হয়। এই মানৱ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ এক গধুৰ দায়িত্ব থাকে। বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীয়ে আয়োজন কৰা পৰিয়াল সন্মিলনলৈ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা মই মহাশ্বেতা ডেকাই আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আমি আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি কাৰ্যকলাপ অৰ্থাৎ এক্টিভিটি আৰু প্ৰদৰ্শনীমূলক অনুষ্ঠান। আমি অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় শ্ৰীযুত ঋত্বিক চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ, উপাধ্যক্ষ মহোদয় শ্ৰীযুত দেৱেন্দ্ৰ মালৱীয়া ছাৰ, আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বিশিষ্ট অতিথি শ্ৰীযুতা বিনোদেৱী বাইদেউ, লগতে মাননীয় অতিথি জিতেন তালুকদাৰ ছাৰ। আপোনালোক আটাইকে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितैर्यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सं समिद्धोबसे शन्नग्ने विश्वान्यार्या, इलस्पदे समिद्धसे सनो वसुन्याभर, सङ्गच्छद्वं संवदद्वं शम्भो मनासि जानतां, देवा भागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते, समानो मन्त्रः समिति समानि, समानं मनः चित्तमेषां, समानं मन्त्रः अभिमन्त्रैवः, समानेन वो हविषा जुहोमि, समानि वो आकृति, समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासति, ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यं जगता, तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्यसिद्धनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। গীতাৰ্থী দিদি, পূৰ্ণিমা দিদি, পৰিমিতা দিদি আৰু মই, লগতে হাৰমনিয়ামত সহযোগিতা কৰিব দীপংকৰ কৈবৰ্ত ছাৰ, তবলাত সহযোগ কৰিব জ্যোতিষ ছাৰ আৰু পাৰ্কাছনত সহায় কৰিব ঋতুৰাজ ছাৰ। যাত্রা
এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ আদৰণি অনুষ্ঠানটোলৈ। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি বিশিষ্ট অতিথি মাননীয় শ্ৰীযুতা বিনু দেৱী বাইদেউ, লগতে তেখেতৰ স্বামী শ্ৰীযুত কন্দৰ্প কুমাৰ শৰ্মা, লগতে আছে মাননীয় শ্ৰীযুত জিতেন তালুকদাৰ দেৱ। তেখেতসকলক আমি আদৰণি জনাবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে মই অনুৰাধা দিদি তেখেতসকলক মঞ্চলৈ আগুৱাই আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আদৰণি জনাব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় শ্ৰীযুত ঋত্বিক চক্ৰৱৰ্তী ছাৰে। শ্ৰীযুতা বিনু দেৱী বিশিষ্ট বাঁহীবাদক, বানাৰস, কাশী, অসমৰ মাজুলী, গোলাঘাট, নগাঁও, বাইহাটা চাৰিআলি, গুৱাহাটী, ধুবুৰী, বৰপেটা, লগতে নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাঁহী বজাই সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সদৌ অসম সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ পৰা শিল্পী বঁটা মহামান্য ৰাজ্যপালৰ হাতেৰে বাইদেৱে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ৰামধেনু গ্ৰুপে বাইদেউক শিল্পী বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছিল। লগতে মিছেছ নলবাৰী প্ৰতিযোগিতাত আদৰ্শ নাৰী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও বাইদেউ বিভিন্ন সময়ত ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা, বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা, খেল ধেমালি আদি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আমি বাইদেউক এই চেগতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি বাইদেউৰ স্বামী শ্ৰীযুত কন্দৰ্প কুমাৰ শৰ্মা, তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়। লগতে আমাৰ মাজত আছে মাননীয় শ্ৰীযুত জিতেন্দ্ৰনাথ তালুকদাৰ, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য, প্ৰাক্তন অভিভাৱক, বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, লগতে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীৰ জন্মসূত্ৰৰ পৰা জড়িত আমাৰ শুভাকাংক্ষী। তেখেতক আদৰণি জনাইছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়। মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ আদৰণি ভাষণ ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট অতিথি বিনু দেৱী বাইদেউ, শ্ৰদ্ধাৰ কন্দৰ্প শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ স্বামী, বিদ্যালয় মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ সন্মানীয় সদস্য জিতেন তালুকদাৰ দা, উপাধ্যক্ষ দেৱেন্দ্ৰ মালৱীয় ছাৰ, শ্ৰদ্ধাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পৰিয়াল সন্মিলনলৈ মই আটাইকেই অন্তৰৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটো খুবেই মংগলময়, শুভ, এইটো কাৰণতে যে আজিৰ এই দিনটোতেই আমি তিনিটা অনুষ্ঠানৰ সমাপৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমতেই আজি ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেথামেটিক্স ডে। দ্বিতীয়তে আজি মা শাৰদা জয়ন্তী, আৰু তৃতীয়তে আজি গীতা জয়ন্তী। এই তিনিটা আমাৰ উপলক্ষ আছে আজিৰ দিনটো। প্ৰতি বছৰেই বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়সমূহত পৰিয়াল সন্মিলন, মাতৃ সন্মিলন বা কেতিয়াবা ককা আইতাসকলৰ কাৰণে সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীও প্ৰতি বছৰেই যোৱা ৩-৪ বছৰ ধৰি নিয়মিতভাৱে পৰিয়াল সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। যোৱা বছৰ 13 জানুৱাৰীৰ দিনটোত আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতিছিলোঁ। আপোনালোকৰ কিছুসংখ্যক অভিভাৱক নিশ্চয় আপোনালোকে জানে, কিন্তু আমাৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলক আমি এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। যোৱাবাৰ প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনৰ কেইটামান ক্লাছৰ কাৰণে আমি কৰিছিলোঁ, আৰু এইবাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ 5ৰ যিসকল অভিভাৱক অভিভাৱিকা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যোৱাবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে।
কিছুমান কাৰ্যসূচী অলপ মনোৰঞ্জন ধৰ্মী আৰু কেইটামান প্ৰতিযোগিতা আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই প্ৰত্যেকটোতে অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই এই অনুষ্ঠান সফল কৰি তুলিব। ইয়াৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানো হ'ব, যিটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পাব। মই আশা ৰাখিছোঁ যে গোটেই অনুষ্ঠানটো খুব শুৱনি হ'ব আৰু আমি আটাই উপভোগ কৰিম একেলগে মিলি। এইখিনি আশা ৰাখি মই নিজৰ ছুটি বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। আজিৰ দিনটোৰ যি মহত্ব, সেই মানে ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য ডে, সেই বিষয়ে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ মাননীয় শ্ৰীযুত দেৱেন্দ্ৰ মালভিয়া ছাৰে আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাব। তাৰ বাবে মই ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती बीनू देवी, विशेष अतिथि श्री कंदर्प कुमार शर्मा सर, हमारे सम्माननीय अतिथि श्री जितेंद्रनाथ तालुकदार सर, श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उपस्थित सभी अभिभावक वृंद, माताएं, बहनें एवं सभी छात्र और छात्राओं, साथ में उपस्थित हमारे सभी शिक्षक वृंद, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके जीवन में। जैसा कि सर ने बताया, आज हम लोग कई तरह के कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। आज शारदा माँ जयंती भी है, आज गीता जयंती भी है, आज मैथमेटिक्स डे भी है। साथ साथ हम लोग आज परिवार सम्मेलन का आयोजन भी किए। परिवार सम्मेलन का आयोजन करना विशेष रूप से गीता जयंती को लक्ष्य में रख करके किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध काल में जब पांडव और कौरव की सेना आमने सामने थी और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर दोनों के बीच में गए, उस समय अर्जुन ने जैसे ही देखा कि हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं वे सब हमारे अपने हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई गुरु है, सारे के सारे हमारे अपने लोग हैं। यह देख करके उनके मन में विषाद आ गया कि मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जो अपनों को मार करके प्राप्त हो। ऐसे जीत लेकर क्या करेंगे, हमें यह जीत नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन से जो विषाद था उसको दूर करने के लिए तरह तरह से उपदेश दिया। वही उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से अमृतमयी वचन जो निकले, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। गीता का मतलब ही होता है गाई हुई, गीता यानी गाई हुई। भगवान श्री कृष्ण ने वो गाया किसके लिए? अर्जुन के लिए। अभी आज के संदर्भ में देखेंगे, आज वह कितना प्रासंगिक है। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वह सभी पुराणों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो, जितने भी उपनिषद है वे सब गाय के समान हैं।
और दुग्धा गोपाल नंदन, और गाय से दूध निकालने वाले भगवान श्री कृष्ण। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, पार्थ यानी अर्जुन। जब गाय से दूध निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले गाय के बछड़े को गाय के पास ले जाते हैं, और गाय जो है उस बछड़े को देख करके दूध देती है। तो वहां पर बछड़े के रूप में अर्जुन थे, जिनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने वह अमृत रूपी गीता यानी अमृत रूपी दूध निकाला, जो आज हम सबके सामने है। आज यह बात हमेशा उठती है कि आज गीता क्यों चाहिए, हमें गीता क्यों पढ़नी है। तो आप उस संदर्भ में देखिए कि उस समय जो अर्जुन थे, आज के अर्जुन हम हैं। अर्जुन के सामने जो समस्या थी, आज हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से कैसे उबरना है, इसके लिए गीता जो है हमें उपदेश देती है, यानी गीता के उपदेशों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, और उसके माध्यम से आज हम अपनी समस्याओं से उबरने के लिए सक्षम होते हैं। आज परिवार सम्मेलन है, इस परिवार में गीता की क्या उपयोगिता है। आज परिवार में गीता के संदेशों की क्या आवश्यकता है। सभी बच्चे बात नहीं करेंगे, आप लोग चुपचाप बैठिए, हाँ ठीक है। कोई इधर उधर नहीं दौड़ेगा, आराम से बैठिए सभी लोग, ठीक है। तो परिवार में गीता को मानने से, गीता के उपदेशों को पालन करने से हमारा परिवार किस प्रकार से अमृत परिवार बन सकता है, उसके ऊपर विशेष रूप से हम लोग दृष्टि डालेंगे। लेकिन उसके पहले मां शारदा के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। मां शारदा जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु। मां शारदा को श्री मां के नाम से भी जाना जाता था। आज ही के दिन वे इस धराधाम पर अवतरित हुई थी। वो एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वह एक अवतार थी। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा जो भी लोग वहां दर्शन करने के लिए आते थे श्री रामकृष्ण परमहंस के, सबको उन्होंने अपने संतान के रूप में देखा। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, 5 या 6 वर्ष में उनकी शादी हो गई थी। और तब बहुत दिनों तक वे अपने घर में ही थी। जब 18 वर्ष की हुई तब वे रामकृष्ण परमहंस के पास आई, और तब से अंत समय तक दोनों ही ने, यानी रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा दोनों ही ब्रह्मचर्य जीवन धारण करते हुए आध्यात्मिक जीवन उन्होंने बिताया। कभी उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं बिताया, अध्यात्म को आगे लेकर के गए। मां शारदा हमेशा ध्यान के ऊपर विशेष रूप से बल देती थी। हमें कोई भी समस्या हो उस समय हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद हमारे अंदर एक शक्ति आती है, और उस शक्ति के माध्यम से हम समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। मां शारदा हमेशा कहती थी कि कभी दूसरे के दोष को मत देखो, क्योंकि दूसरे के दोष को जब हम देखते हैं तो हमारा मन भी दोषी हो जाता है। इसलिए अपने मन की शुद्धता चाहिए तो दूसरा का दोष मत देखो, ये हमेशा कहा करती थी। तो आज परिवार के माध्यम से, इस परिवार में जो विवेकानंद केंद्र विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वे मां शारदा के जीवन को अपना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मां शारदा ने जिस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया उसको धारण कीजिए, बल्कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के साथ कैसे सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़ी, उस चीज को धारण करना है। अमृत परिवार है क्या? अमृत परिवार जो है वह ऐसा परिवार है जहां पर
बच्चों को संस्कार युक्त करके बड़े करना होता है। आज हमारे परिवार में बच्चों को छोटे से संस्कार हम देते हैं क्या? कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो बदमाशी करते हैं तो हमेशा हम दोष देते हैं, ये बदमाशी कर रहा है, बात नहीं सुनता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन हमने उनको छोटे से वो संस्कार दिए क्या? जब बच्चे छोटे होते हैं, बदमाशी करते हैं तो हम इग्नोर करते हैं, अरे अभी छोटा है, रहने दो। छोटे में सब बदमाशी करते हैं। लेकिन वो जो इग्नोरेंस है, वो जो हम टाल देते हैं कि अभी रहने दो, रहने दो, रहने दो, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है और एक समय आता है जब बच्चा हमारा बात नहीं सुनता है। तो बच्चों को परिवार में बड़ा करने के लिए उन्हें संस्कार युक्त करना बहुत जरूरी है। एक बार मैं सुन रहा था, हमारी जो माननीय उपाध्यक्षा है अखिल भारतीय सुश्री निवेदिता दीदी को, वे कह रही थी कि एक बार एक घर में मैं गई, वहां पर एक लड़की आई जिसको तलाक चाहिए अपने पति से, मुझे तलाक चाहिए। जब मैं उससे बात की तो उसने बताया कि मुझे समाज में कैसे और परिवार में कैसे सामंजस्य बैठाकर रहना है हमारे माता पिता ने सिखाया ही नहीं। हमें तो सिर्फ ये बताया कि तुमको फर्स्ट होना है, क्लास में फर्स्ट होना है, समाज में फर्स्ट होना है, हर जगह तुमको फर्स्ट होना है। और मैं वही करती गई, सभी क्लास में फर्स्ट रही। जिस कंपनी में नौकरी करती हूँ वहां भी मेरा परफॉर्मेंस सबसे अव्वल दर्जे का है। अब कंपनी जो है हमें विदेश भेजना चाहती है, लेकिन हमारे परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है, शादी के 3-4 साल हो गए, अब बच्चे भी करना है, तो मैं ऐसा अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ दूं, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। तो माता पिता ने हमें परिवार के साथ कैसे रहना ये हमें कभी सिखाया नहीं। हमें सिर्फ फर्स्ट क्लास रहना है, हमेशा फर्स्ट रहना है, आगे रहना है, सिर्फ यही बात सिखाया। तो हम अपेक्षा तो करते हैं बच्चों से, तुम ये करो, वो करो, बड़ों का सम्मान करो, हमेशा समाज में सबको आदर दो, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। लेकिन क्या हमने कभी उनको सिखाया इस बात को? ये सोचने की बात है। इसलिए ये जो अमृत परिवार है, कभी हम ऐसा करते हैं क्या हमारे घर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं? बहुत कम परिवार में ऐसा होता है। कभी हम बच्चों को रात में अच्छी कहानियां सुनाते हैं क्या? वीर की कहानी, वीरांगनाओं की कहानी सुनाते हैं क्या? परोपकार की कहानी सुनाते हैं क्या? कभी हम उन्हें रामकृष्ण की कहानी सुनाते हैं क्या? ये सोचने की बात है। यदि हम करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न होता है। अभिमन्यु की कहानी आपको मालूम है, गर्भ से ही उसे संस्कार दिए गए थे। तो परिवार में संस्कार की उत्पत्ति होनी चाहिए, और एक संस्कारी बच्चा समाज को देना ये परिवार का दायित्व है। जब परिवार अपना दायित्व निभाएगा, समाज में संस्कारी बच्चा देगा, तो समाज भी परिष्कृत होगा और धीरे धीरे हमारा राष्ट्र भी परिष्कृत होगा। इसलिए छोटे उम्र से ही उनको संस्कार देना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, मैंने जितना लिख कर लाया था उसका 25% ही बोला है, लेकिन बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम है। सिर्फ यह कहते हुए कि हम लोग यदि नहीं करते हैं तो आज से ही अपने घरों में बच्चों में संस्कार जगाना शुरू करें, क्योंकि बच्चों को हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। उनके साथ कम से कम संध्या समय बैठ करके प्रेयर करें घर में, कम से कम उनको नामघर साथ में लेकर जाएं, कहीं कीर्तन हो रहा है वहां पर जाएं तो साथ में लेकर जाएं, कहीं पर गरीब यदि तकलीफ में है, यदि हम उनके मदद करने के लिए जाते हैं तो बच्चे को साथ में लेकर के जाइए, वो भी ये सीखे कि हमें दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए। तो इस तरह से संस्कार हम बचपन से ही शुरू कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। धन्यवाद, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। Gita is the mother of our Indian culture. It guides us in every stage of our life. It's for everyone and can be practiced everywhere.
আপোনালোক আটাই জানে যে আমাৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দৈনিক গীতা শ্লোক অভ্যাস কৰোৱা হয়। গীতা শ্লোকৰ যি মহত্ব, যি শক্তি, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইখিনিতে আমি উপভোগ কৰোৱা হওক তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰা গীতাৰ শ্লোক। পৰিৱেশন কৰিব পাখি জৈন, আহানা জৈন, কৃষ্ণাংগিনী ঠাকুৰীয়া, ত্ৰিয়ানা দত্ত, ৰাজশ্ৰী খনিকৰ, বন্যাৰঞ্জনী কাশ্যপ, মেহেৰ জৈন, কৃষ্টি জৈন আৰু পাইলী মজুমদাৰ। ধন্যবাদ আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰীসকল।